morning everyone. Today we will discuss the next topic of our chapter, the triangle and its properties. And this is the most important topic of this chapter which you will be using in your higher classes also. So it's very important to understand this property properly. Okay. Now in Pythagoras theorem, first thing I would like to say that this Pythagoras theorem is applicable only for a right angle triangle. So what does this property say? This says that in a right angled triangle, square of hypotenuse, now this word hypotenuse is new for you, is equal to sum of squares of other two sides. Okay, and what are those other two sides? Other two sides that is base and perpendicular. That is, how do we read it? That is base and perpendicular. Okay, now this is the statement of the theorem that in a right angle triangle, एक right angle triangle के अंदर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो भी हाइपोटेन्यूज है उसका जो स्क्वायर करेंगे वो इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. नाउ लेट्स सी इट बाय द हेल्प ऑफ वन डायग्राम. लेट्स ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल. फॉर राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज 90 डिग्री. ओके, नाउ supposingly this is triangle ABC. This is right triangle ABC which is right angle at B. Now how you will identify that which one is hypotenuse and which one is base, which one is perpendicular? So one thing is clear that the side opposite to 90 degrees, this is 90 degree, इसके जो just opposite में side होगी, this is hypotenuse always. Okay, this is hypotenuse and this hypotenuse is the longest side of the triangle. अगर इस ट्राइंगल की जो भी तीन साइड्स होंगी उसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी दैट विल बी हाइपोटेन्यूज. ओके, एंड रिमेनिंग अदर टू साइड्स, आउट ऑफ दीज टू वन विल बी बेस एंड अनदर विल बी परपेंडिकुलर. वी कैन टेक दिस ऑल्सो एज बेस एंड वी कैन टेक दिस ऑल्सो एज बेस. इट्स अप टू अस. इसमें से कोई भी बेस परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं. जनरली विच इज हॉरिजेंटल वी टेक इट एज base and which is vertical we take this as perpendicular. Okay, so now I hope you have understood how does this property indicates. Okay, now one more thing, let's mention that how to identify a hypotenuse. First thing, that hypotenuse is the longest side, is the longest side, सबसे बड़ी साइड होगी ट्राइंगल की तीनों साइड में से. Longest side which is just opposite to angle 90 degree. Okay, so now just look at the statement again, how this statement can be written mathematically in a right angle triangle. So this is right angle triangle, so how I will write? In a right triangle ABC, in a right triangle ABC, right angled at B, right angled at B. Okay, so this was right triangle which is right angle कहाँ बना है उसका B पे. Square of hypotenuse, मतलब hypotenuse को हम डिनोट किससे कर रहे हैं? H से. Square of hypotenuse is equal to sum of, this is sum, किस का sum of squares, किस का sum होना चाहिए? Squares of other two side, that is base and perpendicular. तो base का स्क्वायर का sum होना चाहिए प्लस perpendicular के स्क्वायर का sum होना चाहिए. ओके, अगर मैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिखूं तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर, बेस क्या है? BC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर.
सो दिस इज द कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ये बताता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड। ये बस आपको मेनली डिसाइड करना होता है। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। So this is Pythagoras theorem which we will be using in our next exercise, that is exercise 6.5. Exercise 6.5 में हम completely सिर्फ और सिर्फ इस theorem को ही use करेंगे. Okay, so let's see the first example, first question of the exercise, which will help you to understand it better. Now the first question is that PQR is a triangle, right angled at P. PQR क्या है, ट्राइंगल है, और उसका राइट एंगल कहाँ बना है, P पे। तो यहाँ अगर P हो गया, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले सकते हैं, इसको भी आप Q ले सकते हो, इसको R ले सकते हो। सो PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। ये जानना जरूरी है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है, मतलब 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। सो राइट एंगल एट P, इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, नाउ दिस साइड इज गिवन 10 सेंटीमीटर and PR is equal to 24 centimeter. This is given 24 centimeter. Now the question is find QR. आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है, which we can find by using Pythagoras theorem. Why Pythagoras theorem? Because PQR is a right angle triangle. तो हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, in a right ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट P, पूरा लिखना है आपको, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल एट P बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको बताना है कि जो भी आप यूज कर रहे हो किसकी वजह से यूज कर रहे हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके, h square is equal to b square plus p square. Okay, now what is h? ये 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड क्या होगी, h, इसको आप b ले लोगे, 90 जस्ट अपोजिट क्या होगा, h, ये फिक्स हो गया। दिस इज b एंड दिस इज p. ओके, सो हाउ वी विल डू इट, h स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ओके, हमें QR निकालना है, जो हमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड QR। QR निकालने के लिए PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ PR इज 24 एंड द वैल्यू ऑफ PQ इज 10। ओके, 24 को स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जिसे अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 इंटू 2, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करो। वैसे 24 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 24 इंटू 24, एंड 10 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 10 इंटू 10। ओके, सो 24 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 576, और जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100। ऑल दिस इज कमिंग इक्वल टू QR स्क्वायर। ओके, सो नाउ QR स्क्वायर का भी क्या मतलब हुआ, QR स्क्वायर का भी मतलब हुआ QR इंटू QR, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 676। ओके, तो अब आपको मेन कंफ्यूजन यहाँ होगी कि QR की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये जो है QR इंटू QR की वैल्यू कितनी आई है, 676, लेकिन हमें सिर्फ एक QR की वैल्यू निकालनी है। तो इसका तरीका क्या है बेटा, QR निकालने का, आप 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सपोजिंगली दिस इज 676। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम नंबर्स चूज करते हैं। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2, 2 3 are 6, देन अगेन 2 3 are 6, 2 8 are 16. Okay, again divided by 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 9s are 18. Now 169 is the square of 13.
हाउ आई एम एबल टू डू इट इजिली, क्योंकि मुझे स्क्वायर टेबल याद है, ठीक है। सो नाउ यू विल सी दैट 2 इज इन पेयर एंड 13 इज इन पेयर। आपके जो भी नंबर आएंगे ये पेयर में ही आएंगे। सो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676। इसका जब भी स्क्वायर हटाना हो, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया था, क्यू आर स्क्वायर, ओके। जब भी इसका स्क्वायर हटाना हो तो उसके अपोजिट वाले नंबर पे क्या लग जाएगा, ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने तो ये आया। अब इसका 2 का एक पेयर का मैं सिर्फ एक ही नंबर लिखूंगी और इस पेयर का भी मैं सिर्फ एक ही नंबर लिखूंगी। ये स्क्वायर रूट निकालने का रूल होता है। आप इसको रूल मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, क्यू आर स्क्वायर था, मतलब 2 बार था। लेकिन अब मैं क्या निकाल रही हूँ, सिर्फ क्यू आर निकाल रही हूँ, मतलब इस 2 का मैं सिर्फ एक एक पार्ट लूंगी, ओके। सो क्यू आर इज इक्वल टू 26 centimeter. Okay, this is your final answer of question number 1. QR is equal to 26 centimeter. So in this way we have completed question number 1. अगर आपको 1 अच्छे से समझ में आ गया, then only we can start with next question. Now we will discuss second question of our exercise 6.5. Okay, what is the second question? ABC is a triangle, right angled at C. Again, ABC is a triangle which is right angled at C, मतलब C पे क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री, ये कंपल्सरी है। देन इफ AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, नाउ दिस इज हाइपोटेन्यूज विच इज गिवन 25 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसको हम वर्टिकल को मोस्टली क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। दिस इज गिवन सेंटीमीटर। फाइंड BC, वी हैव टू फाइंड BC। सो अगेन वी विल राइट द सेम थिंग दैट इन अ right angle triangle, in a right angle triangle ABC, by Pythagoras theorem, h square, first of all we will mention the theorem, is equal to b square plus p square. Now what is h? AB square. What is base? BC square. What is perpendicular? AC square. Okay, so AB की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर, BC हमें निकालना है और AC कितना है, 7 का स्क्वायर। now 25 का स्क्वायर अगर आप करके देखेंगे, मतलब 25 इंटू 25 दैट इज 625। BC स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे, 7 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49। ओके, now BC square will remain at this side. This plus 49 will come on the opposite side and will become minus 49. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका कितना आ जाएगा, 576 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे 576 का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, BC इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर का बटेगा जब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से जाएगा, अगेन 2 से जाएगा, अगेन 2, 2 3 जा 6, 2 से 12, अगेन 2, अगेन then 3, at last 1. Okay, so what we have found that this is the prime factorization of 576. अब BC निकालने के लिए क्या होगा, इन सबका सिंगल सिंगल लेंगे, इसका एक बार 2, इसका भी एक बार 2, एक बार 2, एक बार 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका एक है, इसका एक है और इसका एक है और इसका एक 3। तो BC इज इक्वल टू कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहे हैं। फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन वी आर मेकिंग पेयर्स ऑफ दैट नंबर एंड वी आर राइटिंग ओनली वन नंबर ऑफ दैट पेयर। ओके, सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 3rd।
लेट्स लुक एट दैट। नाउ दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम जिसका आपको डायग्राम बना हुआ है। अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, लेडर क्या होती है, सीढ़ी, रीच द विंडो 12 मीटर हाई। ठीक है, सपोजिंगली जैसे मान लीजिए ये 12 मीटर हाई जो है विंडो है, इसमें एक सीढ़ी लगी हुई है जो कि कितनी 15 मीटर लंबी है। ओके, एंड दिस इज फ्लोर मान लीजिए आप, ये यहां से कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये ऑब्वियस है। फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। अभी जो सीढ़ी है ये दीवार है, ठीक है, दीवार के अंदर ही खिड़की है। इस दीवार से ये सीढ़ी कितनी दूर, 8 सेंटीमीटर दूरी पे रखी, 1 मीटर दूरी पे रखी गई है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, मतलब हमें ये ए डिस्टेंस निकालनी है जो कि फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल की डिस्टेंस है ये। मैं दोबारा एक बार प्रॉब्लम समझा देती हूँ। अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर इज रीच द विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से पहुंच रही है, ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल, और इस लेडर को इस दीवार के से टिकाकर रखा गया है एट अ डिस्टेंस ए, और इस लेडर को कितनी दूर रखा गया है, ए डिस्टेंस पे वॉल से रखा गया है। कभी भी सीधी नहीं खड़ी हो सकती है लेडर, उसे हमें थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है। सो दिस विल बी द डायग्राम जो कि आपको बना के दिया भी हुआ है, नहीं भी दिया होता तो हम बना देते हैं। नाउ हमें पता है कि ग्राउंड से वॉल की जो एंगल बनता है ग्राउंड और वॉल के बीच में, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ओके, सो लेट्स नेम दिस ट्राइंगल ABC. So what we will write in right triangle ABC by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, what we will write? Again, write down the formula first. H square is equal to B square plus P square. Now what is H? This is 90 degrees, so this is H. That is 15 का स्क्वायर, बेस हमें पता है क्या है A, दिस इज बेस हॉरिजॉन्टल वाला, और परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, A स्क्वायर 144। सो नाउ 225 माइनस 144 इज इक्वल टू A स्क्वायर, 5 माइनस 4 1, 81 इज कमिंग। ओके, 81 इज इक्वल टू A स्क्वायर। दोबारा जब आप 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, 3 से जाएगा, अगेन 3, 3, 1। ओके, सो नाउ A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। सो A इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इस 3 का हम एक 3 लिखेंगे और इस पेयर का भी एक 3। सो A इज इक्वल टू 9 मीटर। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब ये स्टेटमेंट है तो देयरफॉर एट द एंड, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर, फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम वॉल is 9 meter. Okay, so this is the complete solution. I hope you all have understood that how we can use the Pythagoras theorem. Finding square root is new, but I have told you the easy method. आप उसका prime factorization कर लीजिए, which you have learned in class 6. Then we will make pair, and of each pair we will write only one member. क्योंकि इसका मैंने square हटा दिया है, सिर्फ BC बचा है, तो दो का सिर्फ सिंगल member लिखना है. So in this way, on today's date, you can complete these 3 questions. The next question we will discuss in our next class. Thank you everyone.